Good evening, everybody. All of you who are watching us here on Zoom and more people watching us on Facebook. We are just waiting for a few more people to join us. Please do stay tuned. Good evening and a warm welcome to all our viewers on Zoom and on Facebook. Thank you for joining us. India Foundation for the Arts is very happy to bring to you every alternate Thursday, Throwback Thursdays. As most of you would know already, India Foundation for the Arts is a national arts funding organization, and for the last 27 years, we have been making grants across the country in the areas of arts education, arts research, and arts practice. So far, we have made over 600 grants across India, and these grants have been as diverse as they can be in terms of its geographical spread, in terms of the artistic disciplines, and in terms of the cities and the smaller towns, the places across India that we have been able to reach with these grants. Since June, since the pandemic hit us, and then we all started to come and use the online space much more frequently, India Foundation for the Arts has been bringing to you Throwback Thursdays, and this has been our endeavor to bring the work of our grantees to all of you, and it's become this space where IFA has been sharing the lovely work that our grantees have been doing from different parts of the country. I'd like to pass this on to my colleague Tanveer, because today we have Nirmala with us, who has been supported under the Arts Research Program, and my colleague Tanveer is the program officer who has been running the Arts Research Program. So I'll request Tanveer to talk about this and to introduce Nirmala to all of us. But before that, just to remind all of us again, we have the chat box here, and the chat box is for all of us to share our thoughts and reflections on whatever we feel like as Nirmala is speaking to us. But in case you have very specific questions, you will see Q&A section here. So for specific questions for Nirmala, please use the Q&A box, and we'll come back to a question answer session at the end of the presentation. And hope all of you have a lovely evening. Thank you very much, and over to you, Tanveer. Thank you very much, Sumana. Very good evening to everyone watching us right now. My name is Tanveer Rajsi, and I look after the Arts Research Program at IFA. Under this program, we support researchers and practitioners in the arts and culture who are interested to undertake research projects that investigate marginalized or relatively underexplored areas in the arts in India. In order to offer new readings of the artistic practices by using interdisciplinary approaches to break new conceptual ground, among other things. We at IFA specifically encourage applicants to send their proposals to us in all Indian languages, including English. This is an endeavor to contribute to discourse building in particular language contexts. And today's grant showcase is one of the examples of this endeavor.
So I will now switch to Hindi to introduce Nirmala. IFA की थ्रोबैक थर्सडे श्रृंखला की 9वीं शाम में आप सभी का स्वागत है। आप जहां कहीं भी हमें देख या सुन पा रहे हो, आप सभी को हमारा आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एवं गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम हमारे साथ निर्मला है। ये निर्मल बंजारन के नाम से भी जानी जाती है। निर्मला सिरसा हरियाणा की निवासी है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है। लोक साहित्य एवं लोक गीतों में इनकी विशेष रुचि है। लोक साहित्य पर इनकी रचनाएं प्रख्यात हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणवी गीत लोक गीतों पर आधारित इनका एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। ये स्वयं गाती भी हैं, लोकगीत गाती हैं और वर्तमान में हिसार के एक विद्यालय में हिंदी साहित्य के अध्यापिका हैं। 2018 में निर्मला को आईएफए के कला अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से इन्होंने विभाजन की त्रासदी और विस्थापन के कठोर संघर्ष पर आधारित हरियाणवी लोक गीतों पर शोध किया। पारंपरिक इतिहास से परे हटकर निर्मला ने लोक संस्कृति को अपने शोध का केंद्र बिंदु बनाकर गीतों में छुपी उन आवाजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जो या तो बंटवारे के कोलाहल में अनसुनी कर दी गई थी या उनमें छुपी भयानक सच्चाइयों के कारण दबाई गई थी। हिजरत के बोल की ये शाम उन्हीं आवाजों को समर्पित है। इससे पहले कि मैं निर्मला को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, आपको बताता चलूं कि निर्मला हमसे इस वक्त हिसार से जुड़ी है और वहां बिजली का जब भी मन करे आंख मचोली खेलती रहती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर निर्मला का बीच में हमसे संपर्क टूट जाता है कुछ समय के लिए, तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें जब तक ये हमसे वैकल्पिक दूरभाष यंत्र से दोबारा जुड़ेंगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। निर्मला, अब स्क्रीन आपके हवाले कर रहा हूं, आप शुरू कीजिए। सभी को नमस्कार। तनवीर, पीपीटी जी। आज हम बात कर रहे हैं हिजरत के बोल, विस्थापन के गीत, विस्थापन की वो यादें जो दोहों में, कहावतों में, गीतों में किसी न किसी रूप में हमारे सामने आई है। भारत विभाजन, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर त्रासदी रही है। इससे पहले या इसके बाद में कभी भी आबादियों का इतने बड़े स्तर पर कहीं भी विस्थापन नहीं हुआ है। 1 करोड़ से अधिक लोग दोनों तरफ से जो हैं अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। बड़े पैमाने पर इसमें हिंसा हुई। 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1 लाख के करीब महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और 50,000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण हुआ। बड़े पैमाने पर आर्थिक उजाड़ हुआ। लोग कुओं में कूद गए, जिंदा आग में झोंक दिए गए, बीच चौराहे चीर दिए गए। बुजुर्ग ठोकरों में रोल रहे थे, बच्चों को काटा जा रहा था, औरतों का नोचा जा रहा था। किसी के भी हाथ में हिंदुस्तान या पाकिस्तान का नक्शा नहीं था। लोगों को नहीं मालूम था उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें बस ये मालूम था कि जहां वो रह रहे हैं उन्हें वो जगह छोड़कर जाना होगा। कहाँ जाना होगा, उन्हें कहाँ घर मिलेगा, वो नहीं जानते थे। विभाजन कोई अलग या नई बात नहीं थी। इससे पहले और इससे बाद में देशों के, राज्यों के, जिलों के और गांवों के विभाजन होते रहे हैं। नई सीमाएं बनती रही हैं। लेकिन भारत विभाजन इतना त्रासदीपूर्ण हुआ विस्थापन की वजह से। जिस जमीन पर सैकड़ों सालों की मेहनत से, संघर्ष से पुश्तों ने अपनी जड़ें जमाई थी, उन्हें एकदम से उखाड़कर एक ही झटके में खदेड़ दिया गया। यही विस्थापन था और इसी की पीड़ा, यही हिजरत थी, अपने वतन को छोड़ने की मजबूरी थी। इसी की पीड़ा इन लोकगीतों में हम देखेंगे। नेक्स्ट तनवीर, नेक्स्ट स्लाइड। इनको हम अलग अलग गीत, सारे के सारे गीत यहाँ मैंने नहीं लिए हैं, कुछ नमूने गीतों के मैंने लिए मुख्य। तनवीर, नेक्स्ट स्लाइड। और उन गीतों के माध्यम से हम बात करेंगे। निर्मल, स्लाइड दिखी आपको स्क्रीन पे? नहीं दिख रही है तनवीर। मैं एक बार फिर शेयर करता हूँ, 1 सेकंड।
आज का जो हरियाणा है उसका नक्शा आप स्लाइड पे देख पाएंगे अभी। हरियाणा जो है विभाजन के वक्त पंजाब का ही हिस्सा था और पंजाब आप सब जानते हैं कि बीचों बीच से कटा था विभाजन के वक्त। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ, अपनी अलग सीमाओं में विकसित होने लगा। भारत विभाजन की त्रासदी को लेकर लोगों का सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है कि हरियाणा पर कितना असर हुआ। उतना ही असर हुआ जितना पंजाब पर हुआ। हरियाणा के जितने भी क्षेत्र हैं, ब्रज, मेवात, अहिरवाल, बांगर, बागड़, कुरुक्षेत्र, सारा का सारा जो क्षेत्र है किसी न किसी रूप में विभाजन से प्रभावित हुए। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में विभाजन के लिए रोड़ो, कटलोइयो, मरकटियो, काट फांस, 4 की साल की लड़ाई, मारकाटाड़ा साल, उजाड़े आड़ा साल, भगा भगी, हल्ले, बंड, गदल, दंगे, हुल्लड़ियों, गदर, इतने सारे नाम विभाजन के लिए यहाँ प्रचलित है। और लोग विभाजन से जोड़कर घटनाओं को याद रखते हैं कि मारकाटाड़े साल मेरो ब्याह हुयो थो, मैं इतने साल का था उस वक्त, और उस वक्त जो लोग पैदा हुए उनके नाम भी गदलू और गदली रखे गए। इसमें मैंने आज जो हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 30 के करीब पूरे हरियाणा से विभाजन के गीत संकलित किए हैं और 5-6 गीत मैंने वो संकलित किए हैं जो हरियाणा से गए हुए लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और हरियाणवी जुबान में विभाजन के लोकगीत गाते हैं। उनमें मेरी मदद की है मोहम्मद आलमगीर ने, जो पाकिस्तान में मुल्तान में रहते हैं और विभाजन पर लगातार काम कर रहे हैं। नेक्स्ट तनवीर, ये तोलाराम है। तोलाराम जब हिंदुस्तान आ रहे हैं तो रेलगाड़ी में ये गीत सुन रहे हैं। रेलगाड़ियों में भरकर, रेलगाड़ी की सबसे बड़ी भूमिका रही है लोगों के आवागमन में। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रेलगाड़ियों से आए गए हैं। लोग जब हिंदुस्तान लाए जा रहे थे या पाकिस्तान भेजे जा रहे थे तो वो अपनी जमीन के लिए तड़प रहे थे और उसी वक्त वो रेलगाड़ी में गा रहे थे, चल चल गाड़ी हिंदुस्तान, बसण ना दिता मैनू पाकिस्तान, चल चल गाड़ी हिंदुस्तान, शोर कोट कक्की रजवाना, झंग सियालां दा हे मिडवाना, चल चल गाड़ी हिंदुस्तान, बसण ना दिता मैनू पाकिस्तान। वे गाड़ी के रास्ते में आने वाले स्टेशनों को दुखी मन से देख रहे थे। आने की इस प्रक्रिया में जो शहर उनसे पीछे छूट रहे थे वो सिर्फ शहर नहीं थे, वो उनके बचपन की यादें थी, उनके दोस्त, उनके स्कूल, ननिहाल, व्यापार, सब कुछ अब तक जिया हुआ हर पल उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। गुजरते हुए स्टेशन मात्र स्टेशन नहीं थे बल्कि उन लोगों के इतिहास थे, उन लोगों का वर्तमान था, उनके सुख दुख, आशाएं, आकांक्षाएं, सबका आधार थे वो, सबका गवाह थे वो। गीत में एक साथ दो भाव हम देख रहे हैं। एक तरफ जहां तोलाराम गाड़ी से उतरना चाह रहा है, वो अपने स्टेशनों को याद कर रहा है, अपने शहरों को याद कर रहा है, वो उस हूक उसके अंदर जो उठ रही है अपनी माँ भूमि के लिए, उसको छोड़ने की जो तड़प है वो उसमें उठ रही है। दूसरी तरफ एक असुरक्षा का भाव है और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान पहुंचने की जल्दी है ताकि वो अपनी जान बचा सके दूसरे मुल्क में पहुंचकर। नेक्स्ट, वाह वाह बना पाकिस्तान हुक्म साहिब का यही जान, माँ अबो हरप्यू पटियाले, दादा पानी पत करनाल, दादी फिरदी शहर अंबाड़े, कुरुक्षेत्र में फंसा समान। फोटो में आप देख रहे हैं एक विस्थापित हैं लक्ष्मण दास जी और दूसरे मुस्लिम व्यक्ति हैं, मुस्लिम बहुल गांव का ये गीत है, और तीसरे हिंदू हैं। सभी श्रेणियों के लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं, उनमें कोई नफरत नहीं थी। लेकिन ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, त्रासदीपूर्ण जो घटना हुई, उसकी बाद परिवारों पर क्या असर हुआ, कैंपों में उनकी क्या स्थिति हुई, उस चीज को ये गीत बयान करता है। पाकिस्तान का बनना कोई सामान्य बात नहीं थी, लाखों लोगों की जिंदगियां इससे बर्बाद हुई और किसी के भी पास, ना लोगों के पास पुख्ता इंतजाम थे और ना ही सरकारों के पास इंतजाम थे। परिवार इतनी बुरी तरह से बिखर चुके थे कि वो सालों साल एक दूसरे से नहीं मिल पाए। कोई पूर्व योजना के बिना लोगों को भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक दिया गया और सभी सदस्य, आप गीत में भी देख रहे हैं कि माँ कहाँ है अबोहर में, दादा पानीपत में है, पिता पटियाले में है, दादी अंबाले में घूम रही है और कुरुक्षेत्र में सामान छूट गया है। माँ बाप भाई बहनों को ढूंढने के लिए लोग 70 साल से पागलों की तरह आज भी भटक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनका परिवार उनको मिल जाए। गीत में सत्ता पर व्यंग्य है और कि ये कैसा फैसला था सत्ताओं का जिसने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, कित जामे और कित जने,
कित लड़ाए लाड, पता नहीं इस घोड़ का कित खिंडेंगे हाड। घर छुट्या धन माल लुट्या और छुट गए ठोर ठिकाने, पता नहीं जिंदगानी का पड़ा कित कित धक्के खाने। राज पलटता सुनिया था, रैयत पलटी सुनी नहीं। ये अनवर हैं और इनका इंटरव्यू पाकिस्तान में मोहम्मद आलमगीर ने लिया है। जब इनसे परिचय पूछा गया तो ऊपर का भाग आप देख रहे हैं, इन्होंने परिचय दिया रोहतक के अपने गांव से। अनवर नाम से मेरा, कहानी गांव से मेरा, पढ़ाना काम से मेरा, मेरा जी करे पढ़ाने ने। या खाना तो खास था तहसील गुहाना, जिला रोहतक छोड़ के करया मुल्तान ठिकाना। 14 नंबर खुंडी में बुल के नीचे लिया ढूंढ ठिकाने। कितनी गहराई तक जड़ें जो हैं वो बसी हुई हैं कि 72 साल बाद जब आपसे कोई परिचय पूछता है तो आप उस गांव का नाम लेते हैं जहां से 15 साल के आप खदेड़ दिए गए थे, सब कुछ छोड़कर जहां से आप चले थे। वो गांव आपकी आंखों से, आपके मन से कभी भी अलग नहीं हो सकता, वो हर वक्त आपके सामने रहता है। यहाँ अनवर कहते हैं कि हमको कोई ख्वाबो ख्याल नहीं था कि हमको मुल्तान में आकर बसना पड़ेगा। विस्थापन के समय जो हमारा सामान बिखरा, जो हमारी लूट हुई हमारे सामान की, जो हमारा सब कुछ पीछे छूट गया, उनको याद कर रहे हैं और अनिश्चितता को का जिक्र गीत में कर रहे हैं। लोग सालों साल भटकते रहे, उनको नए ठिकाने रास नहीं आए थे। बहुत सारे लोग 5-5 साल बाद भी फिर से अपने वतन को लौट गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही तरफ। वो रोते हुए कह रहे हैं कि हमने आज तक सत्ताएं तो पलटती हुई सुनी थी, लेकिन आबादियों का पलटना, रैयत का पलटना पहली बार देखा और सुना। ये एक अलग तरह की अपने आप में घटना थी। नेक्स्ट। ठीक ऐसी ही बात इस तरफ भी हरियाणा में कह रहे हैं। अनवर की भाषा आपने देखी बांगरू है और हरियाणा में लोग सराइकी में गा रहे हैं, मुल्तानी में गा रहे हैं। इनकी भाषा संस्कृति कुछ भी अलग नहीं है, फिर भी लोगों को खदेड़ दिया गया। काना गया दुजाना गया, गेला सलाम गई, और गालिब जी की घोड़ी बिना लगाम गई। मोड़ा और बसीरे गड्ढा माँ के काटे, बेबुद्धिया ने चाड़े कर दिए, मार मार भर दिए गाड्डे, रहमत रोए मेरी लाडी, तने पाकिस्तान जाना, छूट गया घर गांव, किसा खाना पीना। इन गांव के लोग जो हैं वो चले गए हैं। इस गीत की अच्छी बात ये है कि जहां बहुत सारे गीतों में मुस्लिमों के लिए गालियां हैं, नफरत हैं, और पाकिस्तान के गीतों में हिंदुओं के लिए नफरत है, गालियां हैं, इस गीत में मुस्लिमों के लिए सम्मान है, संवेदना है, प्रेम है, चिंता है। लोग जो यहाँ ठाट बाट से रह रहे थे, सैकड़ों एकड़ जिनके पास जमीनें थी, घोड़ी थी, सब कुछ था, वो सारी सारी चीजें छोड़कर उनको जाना पड़ा। लेकिन खास बात ये है इस गीत की कि यहाँ मजहब से ऊपर प्रेम है और एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिए अपने ही समुदाय को लताड़ रहा है, लानत दे रहा है कि बेबुद्धियां ने चाड़े कर दिए, हद कर दी बेअकल लोगों ने कि मार मार के आम लोगों को मारकर गाड़ियां भर दी। हरियाणा के समाज को अगर हम समझना चाहें तो किसी एक रूप में नहीं समझ सकते। बहुत नफरत भी मिलेगी आपको और बहुत प्यार भी मिलेगा। ये जो नफरत थी वो अप्रत्यक्ष के लिए थी। एक गांव के मुस्लिमों को या एक गांव के हिंदुओं को, दोनों ही तरफ उस गांव के लोगों ने नहीं मारा बल्कि बचाया, क्योंकि लोगों के साझे सुख दुख थे, इकट्ठा रहना था। और उनकी हत्या पर, उनकी दुर्गति पर लोगों को अफसोस हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी लोग पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने सब उन्माद में किया। आपको मालूम है कि इन हमलों के पीछे, इन हत्याओं के पीछे कोई लंबी परियोजना नहीं थी, बल्कि एक बहकावा था, तात्कालिक एक क्षणिक उन्माद था जो पैदा किया गया था धार्मिक संस्थाओं के द्वारा। नेक्स्ट। ये वीडियो सुनिए आप, जो लाहौर के कैंप में गीत गाया, यहाँ रोहतक से जाने के बाद अजमेरी ने ये गीत बनाया, उनके दोस्तों ने बनाया। आवाज नहीं आ रही है वीडियो की तनवीर। तनवीर आवाज नहीं आ रही है वीडियो की। अगर नहीं आ रही है तो मैं ये गीत सुना दूंगी। जी जी, आपको ही सुनानी पड़ेगी क्योंकि आवाज में इसमें कोई दिक्कत। रोहतक तक ठाके हम गिरे लाहौर मैदान में, ओड़ी सोड़ी बात सुनी इस पाकिस्तान में। जैसे यहाँ के लोग वहां तड़प रहे हैं, वैसे ही वहां के लोग यहाँ तड़प रहे हैं अपनी जगह के लिए। रोहतक में हमने लोगों शिस्त बांधनी खूब सुनी, रोहतक में बेवा औरत पूरी तेस गिणी के धन माया की गाड़ी लुट गई, लागी आग समान में, ओड़ी सोड़ी बात सुनी हमने पाकिस्तान में। क्या भाई कहाँ जाओगे? सिंध में। सिंध में जाओगे
गंठे ने भसल बतावे दग बोले राई ने, साई साई वे कह बोले माँ जाए भाई ने, हाथ की हाथ रुपया दे दे दामाद जवाई ने, घर की घर में वे ब्याले चाचे की जाई ने, रोहतक तटा के गिरे लाहौर मैदान में, ओली सोली बात सुने इस पाकिस्तान में। क्या भाई खाटा ने खटमंजे बोले हम खाट कया करते, दुख दर्द ने सुर बतावे हम दुख साठ कया करते, कि तुम इसे मुल्क में जाओगे मारे मामदीन जाट कया करते, क्या घर घर हाट कया करते ना मिलती आग दुकान में, ओली सोली बात सुनी इस पाकिस्तान में। कि भाई गामा ने बोले गोट टाल बलद ने ढग्गा बोले, चाहे हो 1800 की जोट, कह अजमेरी क्यों भिड़ावे होट ना आती बात में जान में, ओली सोली बात सुनी इस पाकिस्तान में। कितनी जबरदस्त बात इसमें कही है कि मामदीन जाट कहा करते कि तुम ऐसे देश में जाओगे कि तुम्हारे हुक्के को भरने के लिए कोई आग भी नहीं दे। दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है आज भी। 72 साल बाद की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ मैं किसी आदमी से पूछ लूं कि आप मुल्तान से आए, तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है तुरंत, वो कांप जाता है, डर जाता है कि मुझसे अगला सवाल ना पूछ ले। यहाँ आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है, गाली बन गया है रिफ्यूजी शब्द और मुहाजिर शब्द। यहाँ उनको वो कह रहे हैं कि ना मिलती आग दुकान में, घर घर हाट कया करते हैं, यहाँ हर घर में तुम्हारे लिए आग उपलब्ध थी। लोग डर रहे हैं, जहां दूसरी जगह जाकर बसने का दर्द है, कश्मकश है, डर है इस गीत में। और लोग संवाद कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे ब्याह शादी के तौर तरीके जो हरियाणा में थे, रोहतक में थे, वो सब अब हमें बदलने पड़े। नेक्स्ट, मजहब की हिफाजत के नाम पर लोग दूसरे देश में गए मजहब को बचाने के लिए, लेकिन वहां जो है शुद्धतावाद के कंसेप्ट ने, शुद्धतावाद के इस विचार ने दोनों ही तरफ इन लोगों को आज तक मुख्य धारा में जगह नहीं दी है। आज तक ये लोग अलग समझे जाते हैं। ये जो गीत है ये कैंप का गीत है, जिसमें कैंप की स्थिति है, क्या हालत लोगों की हुई थी। जो लोग सैकड़ों एकड़ जमीन छोड़कर आए, एक मुट्ठी चने के लिए वो घंटों एक कतार में खड़े रहे। जो बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर आए थे, वो जो है छोटे छोटे कैंपों में रहे महीनों सालों तक। एक कैंप में 4-4 परिवार रहे, 3-3 परिवार रहे। तो कैंपों में जो लोगों की हालात हुई, जो लोग विस्थापन में बच गए थे किसी तरीके से लूट से या मरने से, कैंपों में फैली बीमारी और अव्यवस्था की वजह से हजारों लोग जो हैं मर गए थे। तो ये गीत है, वेखो कला नूर दिया गलियां, बीरा नाल न बैणा रलियां, मेरे शाम निकम्मे ने बेले कला नौर बनाया है। वेखो कला नौर दे खोले, खावण पीवण नु मिल दे छोले, मेरे शाम निकम्मे ने कला नौर बनाया है। वेखो कला नौर दा हाल, पानी मिलदा शहरों बार, मेरे शाम निकम्मे ने कला नौर बनाया है। नेक्स्ट, विस्थापन के समय सबसे ज्यादा भुगता औरतों ने। सब लोग अपनी बेटियों को एक ही नसीहत दे रहे थे, इस गीत में भी है। रानी पुछती राजा नु किस बिद गया जहान, जिनके माँ बाप मरे उनकी गड़ियां रुणे उला, जिनके छोटे बच्चे गुजर गए कैसे जीते उनके माँ बाप। रानी पुछदी राजा नु किस बिद गया जहान, किथे गई बाणिए किथे गया बाजार, जहां गई बाणिए चला गया बाजार। कुड़ी मरी अपनी मौत नु खुद ही हो गुमान। अपने गुमान में अपने अभिमान को बचाने के लिए, आत्म स्वाभिमान को बचाने के लिए औरतें जो है जहर की पुड़िया साथ लेकर चली थी, कुओं में कूद गई थी, रेलगाड़ियों से कूद गई, नहरों में बह गई, खुद को भाला घोंप कर मर गई। गर्भवती महिलाएं जो थी उनके पेट से भ्रूण निकाल निकाल के मारा जा रहा था। जो महिलाएं इन सब चीजों से बच गई, उनको उनके ही परिवार के लोग बच्चे जनते हुए पीछे काफिलों से कैंपों में छोड़ आए मरने के लिए। शायद ही कोई महिला होगी जो विस्थापन के दौरान छेड़खानी या बलात्कार या अपहरण के शिकार ना हुई हो। जो बच गई उनके दूसरे बहुत सारे संकट थे। औरतों ने मुझे बताया कि जब महामारी थी तो उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था। बहुत दिनों तक वो एक ही कपड़े में रही। मुझे सुरजीत कौर और शकीला बताती हैं कि हमें खुद से घिन आने लगी। औरत को वस्तु समझने वाली जो पुरुषवादी प्रवृत्ति है, उसने अपनी सभी कुंठाओं का वमन इस टाइम किया। सबने, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, औरतों को खुलकर खरीदा और बेचा। पैसों और औरत की लूट जो है वो आम बात थी।
जो वर्चस्वशाली लोग थे वो औरतों का अपहरण कर रहे थे। साथ ही स्टेशन मास्टर, पोस्ट मास्टर, दूसरे जो कैंप के अधिकारी थे, जो फौज के अधिकारी थे, वो भी औरतों को हवस का शिकार बना रहे थे। सवाल ये है कि जब चारों तरफ आग थी, लाशें थी, आंसू थे, रोना था, भगदड़ थी, उस वक्त कैसे किसी आदमी की इच्छा ये हो सकती है कि वो संभोग करे किसी औरत से। एक गीत है यहाँ जहाँ हिंदू औरतें, नेक्स्ट तनवीर, हिंदू औरतें जो है एक मुस्लिम औरत को खड़ा देखकर वो गीत बनाती है और वो धर्म और समुदाय से, मजहब से ऊपर उठकर बहनापे की बात करती है, उस औरत के स्तर पर जाकर उसके दर्द को महसूस करती है। गीत को आप सुनिए जिसमें स्टेशन मास्टर कहता है औरत से कि सलवार फाड़कर उसको हाथ में दे देता है और कहता है साड़ी पहन लो और मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हें जहाज में बैठाऊंगा। टेसन ऊपर छोरी रोवे मुसलमान की, अरे बाबूजी मेरी टिकट काट दे पाकिस्तान की, मारे बाप लाहौर जालिए सुत न छोड़ के, अरे बाबूजी मेरी टिकट काट दे पाकिस्तान की, के करेगी जाके लड़की पाकिस्तान में, अरे पाड़ा सुतना दिया हाथ में बांध ले साड़ी, जहाज के माँ बैठ के न राम रटिए, अरे के करेगी जाके लड़की पाकिस्तान में। औरतों की तरह ही बच्चों ने, नेक्स्ट, बच्चों ने भी बहुत ज्यादा भुगता। किसी भी समाज पे संकट आए तो सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे भुगतते हैं। दोनों तरफ हजारों बच्चों का अपहरण हुआ, लड़कियों से शादी कर ली गई बुजुर्ग पुरुषों द्वारा, छोटी छोटी बच्चियों से, और लड़कों को बेऔलाद दंपतियों ने अपना लिया। बच्चों की जो हालात हैं और वो इस गीत में है। कैसे कहूँ पंजाब के दुख दर्द नजारे, गलियों में फिरते हैं यतीम बेचारे, लाहौर अमृतसर में कोई जाके देख लो, गलियों में रुड़ते फिरते हैं यतीम बेचारे, पिंडी कैमलपुर में कोई जाके देख लो, गलियों में रुड़ते फिरते हैं यतीम बेचारे। अच्छी बात ये है इस गीत की कि यहाँ बच्चे जो हैं वो अमृतसर के भी बच्चे हैं, लाहौर के भी बच्चे हैं, वो हिंदू या मुस्लिम के बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ बच्चे हैं। और जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो मानवता को बचाना चाहते हैं, वो लोग, वो बच्चे उनके लिए सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे बच्चे इस गीत में हैं जो आज तक अपने परिवारों से अलग सड़कों पर भटक रहे हैं दूसरे देश में। नेक्स्ट, जो लोग उस वक्त बिछुड़ गए, उनका शरीर जो है वो दूसरे मुल्क में चला गया लेकिन मन उनका नहीं गया। इस एक दोहा है जिसमें कह रहे हैं, मिंतर नो मत जानिए दूर परा को बास, मित्र ये मत समझना कि हम तुमसे दूर बस गए हैं, खोड़ हमारी हीन है जियो तुम्हारे पास। आश्रय लाल साहनी आज भी नमक को रोज देखते हैं, अपने गूगल मैप पे अपने गांव को देखकर सोते हैं। कितने लोग हैं जो उस वक्त की चीजों को हर रोज देखते हैं, सीने से लगाए बैठे हैं। यहाँ जो लोग हरियाणा से गए, बाद में उन्होंने खत में ये बात लिखी कि ऐसा मत समझना हम दूर आ गए, क्योंकि आवाम जो है हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है। उनके लिए विभाजन विस्थापन निहायत गैर जरूरी था। वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरे मुल्क में जाएं, अपने जड़ों से कटे। उनके लिए मित्र प्यारे, खेत क्यार, डांगर ढोरी सब कुछ था। जमीन से आगे वो कुछ नहीं सोचते थे। उनकी आपसी दोस्ती थी और उसी दोस्ती का नतीजा अगला गीत है। नेक्स्ट स्लाइड। आवाम की जो मोहब्बत है, उनकी जो मांग है, सिर्फ यही है क्योंकि उनके लिए चूल्हा, चक्की, खेत, घास, इन्हीं से उनको मतलब है, यही उनके जीवन का आधार है। जन जो है जब उसके जीवन के आधार पर चोट होती है तो एक हो जाता है। इस गीत की खासियत ये है कि इस गीत में किसी एक मजहब की बात नहीं है, किसी एक कौम की बात नहीं है, किसी एक देश की बात नहीं है। इसमें सारी कौम एक होकर, एक तरफ होकर सत्ता से सवाल कर रही है इस गीत में। और यही जो है इस जन की, आवाम की खूबसूरती है कि जब भी उस पर प्रहार होता है किसी तरह का तो वो एक हो जाती है। गीत चल नहीं रहा है मेरे ख्याल से तनवीर, चल रहा है तो चलाइए, नहीं तो ये जी अंतिम गीत है, मैं चलने, गा के हाँ सुनाती नहीं हूँ। आप गाकर ही सुनाए तो अच्छा रहेगा। कड़े मारा चूल्हा, कड़े मारी चाकी, कड़े घास और साटी, अरे किसने पाकिस्तान बनाया, मारी कर दई रे रे माटी।
रे रे माटी एक हरियाणवी का मुहावरा है जिसमें बहुत खराब हालत कर देना, सब कुछ उजाड़ देना। इस गीत में आवाम जो है सत्ता से सवाल कर रही है, लेकिन आवाम को नहीं पता, वो नहीं समझ पा रही कि उसका बर्बादी का असली कारण कौन है, और उसकी इस नासमझी को बनाए रखने के लिए लगातार सत्ताएं प्रयास जारी रखती हैं, चाहे वो धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो या अर्थ सत्ता। लेकिन ये तय है कि जिस दिन बर्बादी का कारण आम जन की समझ में आ जाएगा, उस दिन मासूमों की लाशों पर टिकी हुई कुर्सियां हिल उठेंगी। धन्यवाद। तनवीर, सवाल अगर है तो बताइए। जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने सवाल जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें भेजें, और जब तक हमारे पास निर्मल सवाल आ जाते हैं दर्शकों तब से, तक मैं कोई गीत सुना देती हूँ, आप यही कहना चाहते होंगे। आप गीत भी सुनाएंगे और तब हम थोड़ी सी बातचीत छेड़ हाँ लेंगे जब हाँ, तो हम तक हमारे पास बातचीत कर सवाल आ लेते हैं, जाएंगे। ठीक है। जी, आप गीत से शुरू करना चाहेंगे या नहीं बातचीत से? नहीं, पहले आप बात कीजिए, गीत सुनाती रहूंगी मैं बीच जी जी में। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसका भी जिक्र पहले ही किया था इंट्रोडक्शन में हमारे, कि आपने इससे पहले भी हरियाणा के लोक गीतों पे काम किया है। आपकी एक पुस्तक भी आई है, उस पे एक संग्रह है। आपको कहाँ पे, आपने बहुत रिसर्च किया, उसमें काफी सारी हरियाणा की बोलियों के गीत हैं। किस जगह पे आपको लगा कि इन गीतों में, जो गीत आपने यहाँ प्रस्तुत किए जाए या जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने, कि इनके लिए एक अलग आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा या इनको किसी और तरीके से देखना पड़ेगा, ये सामान्य लोक गीत नहीं है, ये कुछ, इनमें कुछ अलग बात है, ये परे है? असल में तनवीर, बचपन से ही मैं गांव में रही, सब लोगों से ही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। गांव में रही, गीत शुरू से ही बचपन से सुनने का शौक था, गीतों में जाती थी जब औरतें गीत गाती होली पे, तीज पे। जी। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो एक घटना हुई। मेरी दादी के पास एक दोस्त उनकी आया करती थी, रहमती जिनका नाम था, और वो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए हमारे घर पे आती थी, और उसको रहमतड़ी ढाढन सब बोलते थे। तो मैं अपनी दादी से पूछती थी कि ये औरत कौन है, तो वो बताती कि मुस्लिम है, इसका परिवार पाकिस्तान चला गई, ये अकेली छूट गई है यहाँ। मैंने कहा फिर ये मुस्लिम है तो राखी क्यों बांधती है हमारे घर में? तो उन्होंने बताया कि अपने पेट के लिए। उसी दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया था कि क्या, कब पाकिस्तान बना, क्यों बना, बहुत सारे सवाल एक साथ मेरे दिमाग में आए। और फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो मैंने मंटो को, यशपाल, भीष्म सभी उन लेखकों को पढ़ा जिन्होंने विभाजन के बारे में लिखा है। तो विभाजन के बारे में मेरी समझ विकसित हुई। फिर मैंने लोकगीत संकलन किया 2013-14 में, जिसमें 1000 लोकगीत मैंने पूरे हरियाणा से संकलित किया, और लोकगीतों का बुकचा नाम से मेरी किताब आई। उस किताब के दौरान मैंने कोशिश की कि जो चले हुए गीत हैं जिनमें सिर्फ महिलाओं की सिर्फ बॉडी पार्ट्स पे बात होती है, कि चोटी लटके या दामन की बात होती है, चुंदड़ी की बात होती है, इससे आगे बात नहीं होती। तो मुझे लगा कि जो एक कहावत भी है हरियाणा में कि लुगाई की बुद्धि गुद्दी ले रहा है, कि महिलाओं की अक्ल जो है वो गर्दन में होती है, तो क्या महिलाओं की चेतना के गीत भी हैं? उस वक्त मेरे दिमाग में आया। तो चेतना के गीत के लिए मैंने फिर सेकंड वर्ल्ड वार या आजादी के जो गीत थे, राष्ट्रीय महापुरुषों के गीत थे, वो सारे के सारे उनसे पूछे। तो उन्होंने पार्टीशन पर मुझे दो गीत उस वक्त मुझे उस किताब के लिए मिले, और वहीं से मेरे दिमाग में और ज्यादा दोनों चीजें आपस में जुड़ गई कि पार्टीशन और फोक सॉन्ग दोनों पर कुछ काम करने की जरूरत है। 2016 में फिर मैंने काम करना शुरू किया पार्टीशन पे। मैंने कुछ इंटरव्यू किए, 322 इंटरव्यू पूरे हरियाणा से मैंने किए, 186 गांव शहरों में मैं गई। उन लोगों से जब मैंने इंटरव्यू किए तो मैंने पूछा कि क्या पार्टीशन पे गीत भी हैं? याद रखें कि जिनसे मैंने इंटरव्यू किए वो उस वक्त के बच्चे हैं, यानी कि उन्होंने अपने बड़ों से सुने गीत और कितना टुकड़ा उनको याद रह पाया होगा। तो कुछ गीत, एक दो गीत उस वक्त भी मुझे मिले, और उसके बाद मेरी तनवीर से मुलाकात हुई तो तनवीर ने कहा कि इस पे कुछ डेवलप किया जाए, और आईफे के साथ पार्टीशन फोक सॉन्ग पे काम किया जा सकता है। तो मुझे ये बात बहुत जची कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट तो था ही, मुझे क्या चाहिए। और सपोर्ट मिलते ही फिर मैंने ये काम शुरू किया कि पार्टीशन के लोकगीत अलग से इकट्ठे किए जाएं, और सिर्फ इकट्ठे ही नहीं, क्योंकि उन गीतों को सुनाने वाले लोग आगे नहीं बचेंगे,
और उन पे समीक्षा की जाए कि उनको किस तरीके से देखा जाए। हो सकता है कि किसी गीत में मारने की बात है तो उससे कोई आदमी कहे, गर्व महसूस करे कि हमने मारा। नहीं, आप उस गीत की समीक्षा कीजिए कि आप इसको कैसे देखें। कम से कम लोगों में अब तो प्यार मोहब्बत कायम हो सके और गीत का पॉजिटिव पक्ष जो है वो हम लोगों के सामने लेकर जा सके। तो मैंने फिर ये काम शुरू किया। तनवीर और निर्मला, यहाँ पे हमें जूम के द्वारा और फेसबुक के द्वारा भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ से एक मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, निधि खुराना। इनका ये प्रश्न है, हाय निर्मला, your compilation and presentation is lovely. I am a Punjabi from Haryana and both my grandparents, maternal as well as paternal, hail from Pakistan. I have grown up listening to these stories. I want to ask, how was it for you to put all this together? This is intense and can bring up very difficult emotions. निर्मला, मैं इसको अनुवाद करता चलूं क्विकली। हाँ, जी, ये निधि खुराना है जो हरियाणा की है, पंजाबी है, और इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पहले अपने बारे में बताया है कि इनके दोनों तरफ के दादा दादी पाकिस्तान से थे। ये पूछना चाह रही हैं कि आपके लिए ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? ये बहुत गहरा है, बहुत इसमें इमोशंस है। इमोशनली कितना ये आपके लिए चैलेंजिंग था? निधि, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अगर आप हरियाणा में कहीं रहती है तो आकर मुझसे मिलिए। इस पर 1 या 2 मिनट में बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मैं भी और निधि आप भी, शायद हम पूरी रात इस पर बात करते रहे। ये वाकई बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था, मैं इसको शब्द भी नहीं दे सकती। मैं उन रातों में जब सोती थी, मुझे सपने आते थे, मुझे चीखें सुनाई देती थी, मुझे रेलगाड़ियां नजर आती थी। 1.5-2 साल मैं ठीक से सो नहीं पाई। जब मेरे सामने वो बुजुर्ग रो रहे होते थे, वो हाथ जोड़ते थे, कान पकड़ते थे और कहते थे कि ऐसा फिर से तो नहीं हो जाएगा। वो जब 70 साल पीछे लौटते थे और अपने अंदर की तहें खोलते थे, तो सच में बेहद मुश्किल था खुद को रोक पाना। लेकिन मैंने खुद को रोके रखा, मैं तटस्थ रही। बाद में मैं इस काम में डूबी, लेकिन उन लोगों के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ये वाकई बहुत खतरनाक मंजर था। लोग खुद बता रहे थे कि उनके पापा ने उनके छोटे भाई को उनके सामने कत्ल कर दिया था। लोग खुद बता रहे थे कि मेरी बहन को काफिले में मेरे सामने से खींच कर ले गए थे। लोग बता रहे थे कि हम कितने दिन बाद, कि 5 दिन हम पेशाब नहीं कर पाए, हम रेलगाड़ी में घुटने मोड़ कर बैठे रहे और जब हम बॉर्डर पे पहुंचे तो हमें छोले मिले जिनमें फफूंद लगी थी, फिर भी हमने वो खाए। तो बहुत ही खराब नहीं कहूंगी, एक अजीब तरह का एक्सपीरियंस रहा, बेहद मुश्किल था। और मुझे लगता है कि मैं नहीं रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं नहीं रही हूँ। मेरे अंदर मोहम्मद यूसुफ बस गए हैं, रंगी चमार बस गए हैं, सदीकन सकीला बस गई हैं मेरे अंदर जो है महेंद्र सिंह बस गए हैं। सब लोग मेरे अंदर समा गए हैं, उनके एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप 300-400 लोगों की स्टोरी सुनते हैं, और गीत खास तौर से स्टोरी से भी आगे की बात करता है, बहुत डूब कर गीत आता है। गीत ऐसे ही नहीं पैदा होता, जब हम अंदर तक चीर दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तभी गीत हमारे सामने आता है। तो ये बेहद अलग तरह का अनुभव था। नेक्स्ट कोई सवाल? हाँ, अगला क्वेश्चन हम ले सकते हैं अभी। जी। ये सुनील पगल जी हैं जो फेसबुक से हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको इन गीतों को संकलित करने के बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, कहीं बहुत सहयोग और प्यार भी मिला होगा। क्या आप कुछ घटनाओं को साझा कर सकेंगे? बिल्कुल सुनील जी, इस तरह की घटनाएं मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे साथ हुई। सबसे पहले तो एक लड़की के लिए और एक किसान की बेटी, पहली जनरेशन जो पढ़ रही है, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। परिवार को मनाना ही बेहद मुश्किल था, पहला काम था। उनका मानना था कि मैं नौकरी करूं, ये काम ना करूं। उसके बाद जब मैं निकली तो यात्रा की इतनी दिक्कतें, हरियाणा में जो परिवहन की दिक्कतें तो हैं ही, उसके बाद शाम होते ही जो गांव का माहौल बदलता है, शराब जो है वो पीना शुरू कर देते हैं लोग। कमेंटबाजी, पीछा करना, घूरना, टच करना,
द्विअर्थी बातें करना, ये तो बिल्कुल आम चीजें थी जो मैं डेली भुगतती थी। और एक इतनी बड़ी घटना मैंने भुगती जिसके बाद मैं कमरे में बंद हो गई थी। मैंने ये काम बंद कर दिया था 8-10 दिन के लिए। पहले दिन मैंने एक इंटरव्यू किया गुरुद्वारे में, मेरी धारणाएं भी टूटी बहुत सारी। एक गुरुद्वारे में इंटरव्यू किया और अगले ही दिन उन बुजुर्ग ने कहा कि एक और इंटरव्यू करवाऊंगा और आप आना। उन्होंने इंटरव्यू करवाया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की कि मैं वहां से भागकर बाहर आई और बड़ी मुश्किल से मैं अपने कमरे तक पहुंची, अपने घर तक। और मैं कमरे में बंद हो गई। मुझे खुद से ग्लानि आने लगी थी, घिन आने लगी थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मेरे दोस्त बेहद अच्छे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। 8-10 दिन बाद उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उन्होंने फिर से काम शुरू करवाया। 2-3 दिन मेरे साथ गए और कहा कि इस समाज में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें रेप के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अपने मन से ये तुम सोच कर चलो कि तुम्हें हर चीज का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम निकल गई हो तो तुम काम करो। मैंने फिर से काम शुरू किया। बाकी खाने पीने की और सोने की बहुत सारी दिक्कतें आई, वो तो बहुत छोटी दिक्कतें लगती है। लेकिन प्यार भी बहुत मिला। मैं बिल्कुल अनजान घरों में रुकी कि मैं पहली बार गई और उन्हीं के घर में रुक गई और मुझे बिल्कुल भी अनसिक्योर फील नहीं हुआ। मुझे लोगों ने हाथ रख के सिर पे कहा हरियाणा से हमारी बीएटी आई है, पहले हम पैसा देंगे, यहाँ पैसा देने की रिवाज है ना लड़की को, उसके बाद हम इंटरव्यू देंगे। वो लोग मेरे लिए जब इतना प्यार से खाना बनाकर लाते, कई बार रिक्शे वाला कहता कि मैं पैसे नहीं लूंगा। और एक बहुत शानदार घटना, एक मोहम्मद यूसुफ जो अब राम किशन है, हिंदू परिवार के साथ रहते हैं, हिंदू हो गए थे पार्टीशन के टाइम, उन्होंने मुझे अलग बुलाया और कहा बेटी तुम इतना काम कर रही हो, तुम्हें पैसे की भी जरूरत होगी, मेरे से थोड़े से पैसे ले जाओ। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप पैसे ले जाओ, मैंने नहीं लिए। लेकिन वो जिस तरीके से पूछ रहे थे वो चीज मैं नहीं भूल सकती। और इन्हीं लोगों का जो प्यार था, जो सहयोग था, उसी से मुझे ऊर्जा मिली। अपने दोस्तों से तो सहयोग मिला ही मिला, फील्ड में भी लोगों से बहुत सहयोग मिला। उसी ऊर्जा से मैं आगे बढ़ रही हूँ और काम कर रही हूँ। और एक प्रश्न यहाँ है सोहम दास. Soham Das is saying he's from Calcutta. First of all, thank you for choosing an important topic. The presentation has been also a precise and compact one. You have just mentioned about Manto and other writers in those writings of partition that have come in such a direct way. As per your research, did these songs ever come into their literature? निर्मल, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा या आप जवाब देंगे? अंतिम लाइन बता हाँ, दीजिए आप इन्होंने मुझे। पहले शुरू में तारीफ की है प्रेजेंटेशन की, हाँ हाँ आपको वो बधाई दी है, और हाँ। आपने मंटो का जिक्र किया था शुरू में, और ये बता रहे हैं कि मंटो जैसे राइटर्स की और बहुत सारे राइटर्स की राइटिंग्स जो है, जो उनका लेखन है, उसमें पार्टीशन के डायरेक्ट रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। क्या उनके उनके काम में इन गीतों का भी, हाँ, क्या इन नहीं, ये गीत कहीं मिलते हैं? सोहन दास जी, कहीं भी इन गीतों का जिक्र नहीं है। मैंने हरियाणा के स्पेशली 5000 से भी ज्यादा गीत देखे जिनमें विभाजन पर एक भी लाइन नहीं थी, एक गीत तो होना दूर की बात। और विभाजन पर भी मैंने 50 के करीब किताबें पढ़ी, फिल्में देखी। लोकगीत किसी भी किताब में मुझे नजर नहीं आया। हाँ, लोक का कुछ क्षेत्र अब्दुल्ला हुसैन की किताब में थोड़ा सा परिदृश्य जो है वो हरियाणा का लिया गया है। पाकिस्तान से हैं अब्दुल्ला हुसैन, 1964 में उनकी किताब आई थी उदास नस्लें, उसमें थोड़ा सा जिक्र अंबाला के क्षेत्र का है। और उर्वशी बुटालिया की किताब में थोड़ा सा जिक्र है। हरियाणा का तो जिक्र ही बहुत कम आया और लोकगीत तो है ही नहीं कहीं भी। इसीलिए मुझे लगा कि जो ओरल हिस्ट्री है, क्योंकि सत्ताओं का इतिहास तो लिखा जाता रहा, जिनके पास किसी भी तरह की पावर थी उन लोगों का इतिहास लिखा जाता रहा, लेकिन जन का इतिहास, जन क्या चाहता था, लोग क्या चाहते थे, वो इन गीतों में ही पता चल रहा है। तो उन्हीं के कल्चर को समझने के लिए मैंने इन गीतों पर काम किया। फेसबुक से स्मृति नेवाटिया जी पूछ रहे हैं कि आमतौर पर पार्टीशन की बात तक नहीं होती है और 1 मिनट और एक छुपी सी रहती है। क्या ये गीत अब तक युवा पीढ़ी के कुछ लोग गाते हैं? नहीं स्मृति जी, ये गीत युवा पीढ़ी के लोग बिल्कुल नहीं गाते। मैंने अब तक सिर्फ 2 गीत थे जो बिना प्रयास के अपने लाइफ में सुने थे, क्योंकि गीतों में मैं लगातार जाती रही हूँ, हजारों गीत मैंने सुने। सिर्फ 2 गीत थे जो बिना बताए लोगों ने सुनाए। एक तो खेल का गीत है बच्चों का, आप कहें तो मैं यहाँ सुनाना चाहूंगी वो।
बच्चों का वो गीत है, खेल खेल में बच्चे गाते थे, ABCD, मुंह में बीड़ी, हाथ में पान, चलो पिताजी पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या हुआ, लाला जी का ब्याह हुआ, नून मिर्च की बहू बनाई, छम छम करती पानी लाई। एक बाल गीत है, बच्चे खेल खेल में से गाते थे और ये मैंने नौजवान लड़कियों से हॉस्टल में सुना। एक और गीत मैं कैथल के किसी कार्यक्रम में, शादी में मैं थी चाक पूजन में, वहां मैंने एक गीत सुना जो 1971 में जब पाकिस्तान का फिर से विभाजन हुआ तो वो गीत बना, लेकिन वो विभाजन की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान को तोड़ने की, खत्म करने की बात कर रहा है। वो एक अलग तरह का गीत है। युवा पीढ़ी में वही गीत जो है ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जो किसी मौके पर, खास मौके पर गाए जाते हैं, शादी ब्याह के, संस्कारों के गीत, त्योहारों के गीत। ये एक ऐसा पक्ष है जो त्रासदीपूर्ण है और इस पक्ष को लोग नहीं दिखाना चाहते, इस पे बात ही नहीं करना चाहते। जब मैं गई हूँ, मुझे खुद दिक्कतें आई हैं। लोग कहते हैं क्या करोगी जानकर, कुछ नहीं रखा है, आप मत कीजिए इस पे बात। वो इस काले शाही पक्ष को अपने जीवन में लाना ही नहीं चाह रहे, वो इसको भूल जाना चाहते हैं। हालांकि अलग बात है कि वो 24 घंटे उनके दिमाग में रहता है, लेकिन वो किसी से चर्चा इसके बारे में नहीं करना चाहते। और ये सेलिब्रेशन के गीत नहीं है, ये त्रासदी के गीत हैं, इसलिए इन गीतों को नहीं गाया जाता। और यहाँ जूम से शर्बेंदु दे पूछ रहे हैं, हेलो निर्मला जी, कैन यू स्पीक अबाउट द रेलेवेंस ऑफ folk tales as a medium of communicating incidents and stories? For example, why do we need folklore as a medium as opposed to, let's say, prose or other creative mediums? Why are folklores important? निर्मला ये पूछना चाह रहे हैं, फोकलोर की भूमिका बताइए आप कम्युनिकेशन में, कि जब हम किसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं या किसी कहानी का उसमें वर्णन होता है तो फोकलोर एक माध्यम बनता है। तो उस माध्यम के बारे में, एक क्रिएटिव माध्यम ही है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। और ये भी बताएं कि फोकलोर ये जो माध्यम है, व्हाई डू वी नीड फोकलोर, हमें लोकगीतों की या लोक कलाओं की या लोक साहित्य की क्यों जरूरत है खासकर, और इन फोकलोर एज अ मीडियम अपोज टू इनमें। और जैसे हमारे पास बाकी क्रिएटिव माध्यम है, जैसे निबंध लिखना है, बाकी पोइट्री है, तो फोकलोर और इसमें आप थोड़ा सा अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि फोकलोर क्यों जरूरी है। फोकलोर मुझे लगता है कि दोनों ही तरह का साहित्य मैंने पढ़ा, हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, और दूसरी तरफ लोक साहित्य। मुझे खुद को लोक साहित्य ज्यादा खींचता है और मुझे लगता है कि लोक, क्योंकि लोक की बात है और बहुत सीधी जुबान में है, कोई लाग लपेट नहीं है, उसमें कोई कल्पना नहीं है, उसमें सीधापन है। वो गाली भी देंगे तो सामने ही देंगे। तो मुझे लगता है कि लोक साहित्य और लोक गीत जो हैं वो एक तो बहुत आसानी से, जल्दी से अपने संदेश को, अपनी बात को समझा पाता है अन्य माध्यमों की तुलना में। दूसरा क्या इनका था, लोकगीत की भूमिका। क्योंकि जब हम आज के दिन खासतौर से ओरल हिस्ट्री की बहुत ज्यादा बात हो रही है, ओरल हिस्ट्री पे ज्यादा काम होने लगा है, तो ओरल हिस्ट्री को अगर हम जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास के कई सारे पक्ष होते हैं, और अगर हम लोक साहित्य के अंदर नहीं जाएंगे, उसके अंदर से नहीं गुजरेंगे, तो हम इतिहास का एक पक्ष छोड़ चुके होंगे। उस पक्ष को सामने लाने के लिए, उस पक्ष को जानने के लिए लोक साहित्य के अंदर से गुजरना बेहद जरूरी है। और निधि खुराना जी, जिनके प्रश्न आपने ऑलरेडी आंसर किया है, वो बोल रही हैं कि वो बेंगलोर में रहती है पर साल में एक बार तो करनाल आती हैं, तो आपकी ईमेल या कांटेक्ट नंबर अगर दे सकें तो वो पूछ रही हैं। तो अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो हम आपका ईमेल। बिल्कुल आप दे सकते हैं निधि जी, मैं भी मिलना चाहूंगी आपसे, मुझे अच्छा लगेगा। आप करनाल में नहीं, हिसार में आइए इस बार, स्वागत है आपका हरियाणा में। और एक प्रश्न है यहाँ श्रुति जी से, जो पूछ रहे हैं कि आई वांट टू आस्क अबाउट द स्टेट ऑफ हरियाणवी लैंग्वेज एंड कल्चर इन पाकिस्तान टुडे। ये तो सीधा पहले आपके वर्क के लिए बहुत ही अप्रिसिएशन उन्होंने भी बहुत यहाँ पे व्यक्त किया है, थैंक यू फॉर योर करेज एंड कन्विक्शन। और फिर पूछ रहे हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज और कल्चर इन पाकिस्तान का क्या स्टेट है। निधि जी पूछ रहे हैं क्या ये?
श्रुति। ये Yeah. श्रुति 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 जी, असल में विभाजन जो हुआ था, थोड़ा सा हम इसको जब लोगों के बीच जाकर काम करते हैं तो मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात पता चली। लोगों का एक्सचेंज हुआ था, ऐसा नहीं था कि कहीं से कोई भी आया और वो कहीं भी रह रहा है। जैसे हरियाणा में सिरसा, हिसार और रोहतक में मुल्तान के लोग हैं, और सिरसा, हिसार और रोहतक के लोग मुल्तान में हैं। डेरा गाजी खान जो है पाकिस्तान में, वहां के लोग महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ और नारनौल के लोग जो है वो डेरा गाजी खान में। सरगोधा के लोग जो हैं वो करनाल कुरुक्षेत्र में हैं, और गुजरावाला के लोग जो हैं वो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में हैं। तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के लोग जो हैं वो सरगोधा और गुजरावाला में हैं। ये इस तरीके से किया था कि उन लोगों की जहां वो रह रहे हैं, वहां का जलवायु, वहां की फसलें, उन सब के हिसाब से उनको एक्सचेंज किया गया था। तो हरियाणा में जहां जहां के लोग हैं, पाकिस्तान में वहीं वहीं हरियाणा के लोग हैं। वन मोर क्वेश्चन है, प्रिया नरेश पूछ रहे हैं कि लोकगीत कब लोकगीत कहे जाते हैं? क्या इस कैटेगराइजेशन में समय का रेलेवेंस होता है? नहीं, लोकगीत की खूबसूरत बात यही है कि उसका कोई समय नहीं होता, उसका कोई व्याकरण नहीं होता, कोई भाषा की, छंद विधान की कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सीमाएं नहीं होती कि आपको इसी सांचे में भरना है। लोकगीत सीधे साधे मन की, सामूहिक, लोगों के जो सुख दुख हैं, लोगों की चिंताएं हैं, खुशी है, प्रेम है, बिल्कुल सीधा साधा बेबाक तरीके से उसकी अभिव्यक्ति ही लोकगीत है। ये समय में नहीं बांधे जा सकते। हाँ, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये गीत, उस गीत के कंटेंट को देखकर कि ये गीत इस समय से इस समय के बीच का होगा। तो और एक प्रश्न है यहाँ राजीव जी से, निर्मला तारीफ के शब्द दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपकी कर्म, वन सेकेंड, माय स्क्रीन इज मूविंग, प्लीज डू नॉट पुट एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट। ये पूछ रहे हैं कि इस दौर में आज के समाज में धार्मिक मोहब्बत व नफरत को महसूस किया होगा, आज के दौर की चेतना पर टिप्पणी जरूर कीजिए। असल में राजीव जी, इन गीतों के एक पक्ष पर मैंने बात की है, एक और पक्ष है जिसमें ये मोहब्बत या नफरत आज की नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा एक एजेंडा था जो आज पूरा होने जा रहा है। ये पार्टीशन से पहले भी ये नफरत फैलाई गई थी कुछ संस्थाओं द्वारा। आप जानते हैं कि धर्म और राजनीति के गठजोड़ में और सत्ताओं के फायदे के लिए लोगों को हमेशा हमेशा शिकार बनाया गया है, आज भी बनाया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज है जो हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, हम जैसे लोगों को काम करने की जरूरत है, जिस पर जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं, हजारों हजार लोग एक दूसरे से कैसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, वो हम टीवी में जो देख रहे हैं। एक असल में ये भी है कि जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान खासतौर से अलग हुआ है, तो मुस्लिम को सीधा सीधा ये समझते हैं कि इसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और पाकिस्तान का नाम लेना इस देश में गुनाह हो गया आज के दिन, और मुस्लिम का नाम लेना भी। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ सारी चीजें जो हो रही हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह सब हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को समझकर हमें डटकर लड़ना होगा। हमें भी पैरेलल एक काम करना होगा, लोगों के बीच में ये बात पहुंचानी होगी कि कितने प्यार मोहब्बत, साझी संस्कृति हमारी रही है, प्यार मोहब्बत का हमारा इतिहास रहा है। तो हम उस प्यार मोहब्बत को ही कायम करें। हम इस जो काला जो ये पक्ष है जो आज कोशिशें की जा रही है उसको छुपाने के लिए सिर्फ यही काम कर सकते हैं। स्थिति सब लोग जानते हैं कि बहुत ही भयानक हो चुकी है। यहाँ धीरेश साइनी जी का एक प्रश्न फेसबुक से आया है, निर्मला जी आप देख सकते हैं ये प्रश्न को। ये पूछ रहे हैं कि निर्मला, सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि आदमी यह मानता है कि उस पर मैं पढ़ जुल्म, रही हूँ ये सोमना जी, बहुत कम लोग हैं जो धर्म और इलाके से ऊपर उठकर सच को स्वीकार करते हैं। यह अनुभव में आया कि लोग कहकर टालते हैं कि वो तो कोई और गांव के लोग आए थे हमले के लिए। अलग अलग तरह का अनुभव रहा धीरेश जी मेरा।
ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने खुद कहा कि मैं अलिया की गर्दन जो है एक ही बर्छी में मैंने अलग कर दी थी, बड़े गर्व के साथ कह रहे थे। ऐसे लोग भी मिले हैं जो पछता रहे थे कि हमने बहुत गलत किया, हमें समझ नहीं थी। ऐसे लोग भी थे। रामेश्वर पंडित से जब मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि प्यारा पंडित, 52 लाशें जो थी जिनको दूसरे गांव के लोग आकर मार गए थे, प्यारा पंडित 3 दिन उन लाशों के बीच घूमता रहा, ये कहता हुआ कि कोई जिंदा है तो पानी पी लो, कोई जिंदा है तो रोटी खा लो। तो ऐसे लोग भी, दोनों ही तरह के लोग दोनों ही तरफ थे, आज भी हैं, उस वक्त भी थे। बचाने वाले भी थे, मारने वाले भी थे। बहुत सारे प्यार मोहब्बत के किस्से मेरे पास हैं और मैं चाहती हूँ उन्हीं किस्सों को हम आगे लेकर जाएं। नफरतों के किस्से फैलाने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा नफरतें थी, पैदा की गई थी और लोगों ने मारा अपने हाथों से, लोगों ने बचाया भी। तो ये हम तय करेंगे कि हमें कौन सा पक्ष उठाना है। इस पे बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं मेरे सामने आई हैं, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। अभी तो यहाँ कोई और प्रश्न नहीं है। अगर हमारे जूम अटेंडीज में कोई पूछना चाहते हैं या फेसबुक से भी पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। या तब तक निर्मल हम आपस में बातचीत करें जब तक प्रश्न हाँ आते जी, रहे। हाँ जी, जरूर। मेरा आपसे ये धारणा है, और प्राचीन यूनान में भी ये माना जाता था कि कला जो है, कला का जन्म तभी होता है जब इंसान से कुछ छिन जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ रह जाता है, जिसके बारे में हमारी सामान्य भाषा में हम जब बात करने लगते हैं तो शब्दों की सांस फूलने लगती है, और तभी शायद गीत भी बनता है। जो किसी ने अभी प्रश्न पूछा था कि अब ये गीत कैसे हैं, 72 साल रहे ये गीत रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन गीतों में पिछले 72 सालों में क्या कोई चेंजेस आई हैं, क्या कुछ नया जुड़ा है, या कोई कुछ कुछ गीतों के आपको बहुत सारे वर्जन मिले? जो लोकगीतों में अक्सर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं तो उसमें कुछ जुड़ जाता है, कुछ छूट जाता है। तनवीर, जो सीधा सीधा विभाजन के गीत हैं वो एक घटना थी और घटना की 5, 7, 10 साल के अंदर वो गीत बने, तो उन गीतों में कोई बदलाव हम नहीं देखते। आप भाषा भी आपने देखी होगी गीतों की, जैसे पाकिस्तान, वो भाषा भी एज इट इज है। लेकिन बाद में जो एक दो गीत बने हैं, उनका एक कमाल की बात ये है कि वो गीत, एक ही गीत मुझे 2 जगह मिला और वो बाद में बना है, 1971 में वो गीत बना है। इसलिए वो गीत 2-3 जगह है, शायद वो पूरे हरियाणा में या हरियाणा से बाहर उस गीत ने मूव किया है। दोनों इलाके जो हैं बहुत दूर है, एक फरीदाबाद है, एक कैथल है, और दोनों की दूरी भी बहुत है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है बिल्कुल, लेकिन फिर भी गीत का कंटेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन जो पहले के गीत हैं उस वक्त ना तो लोग, क्योंकि मैंने बताया कि लोगों को बसने में इतना साल लग गए थे, 8-8, 10 साल, तो मुझे नहीं लगता उस स्थिति में वो उन गीतों को गाया होगा, या गाना ही नहीं चाहा असल में उन्होंने उन गीतों को, और उनको उन्होंने सहेज कर रखा होगा, किसी को सुनाया होगा, क्योंकि गीत की भाषा तभी बदलती है जब वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अगली पीढ़ी उसको अपने तरीके से गाती है ना। लेकिन इसमें भाषा और लहजा नहीं बदला है अधिकतर गीतों का, सिर्फ 1 या 2 गीत हैं जिनमें थोड़ा सा बदलाव हमें मिलता है। एक और कोई प्रश्न पूछा, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। राजेश देवरा का प्रश्न आया है शायद। बहुत क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि जब आप अपने काम के मुस्लिम गांव में गए, जैसे कि मेवात में, तो क्या मुस्लिम लोगों ने आपको एक हिंदू लड़की होने पर संकोच की भावना से देखा? हिंदू लोगों को मुस्लिम के प्रति, मुस्लिम एक लड़की की बजाय हिंदू लड़की के रूप में। राजेश जी, ये मेरा बहुत ही शानदार अनुभव रहा, और आज अगर मुझसे पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ काम करना पसंद करोगी, मुझे ऑप्शन मिले, तो मेरी पहली पसंद मेवात होगा। जब तक मैंने ये काम नहीं किया था, मेरे दिमाग में ये था कि मुस्लिम बहुत बुरे होते हैं, वो तो हिंदुओं से उल्टे चलते हैं, एक नफरत मेरे दिमाग में थी जो सालों साल मेरे दिमाग में भरी गई थी। पहली बार जब मैं मेवात में गई 2013 में, तब भी मुझे डर लगा था। लोगों ने भी कहा, मेरे दोस्तों ने कहा ध्यान से जाना, अकेले मत जाना, लेकिन जितना प्यार मुझे, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत मेवात में मिली है, मुझे कहीं नहीं मिली है।
जिन एरिया पे हम गर्व करते हैं, बांगर खास तौर से, और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बांगर में आई, जबकि सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत जो है वो मेवात में मिला मुझे। और मेवात की खूबसूरती ये भी रही कि मैंने जो मिंतर नो मत जानिए दूर परां को बास, वहां जो फोटो आपने देखा उसमें वो आर्य समाज मंदिर में बैठे हैं, वो बाबा जो गीत सुना रहे हैं, और वहां साथ में बैठी हैं बलवंती जो विस्थापित होकर आई है, और अकेली ऐसी औरत है जो मुस्लिम बहुल गांव में रह रही है 70 साल से। और बलवंती पूरे गांव की बहन जी है, 2 साल का बच्चा भी उन्हें बहन जी बोलता है। और बलवंती कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आर्य समाज मंदिर में वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रही है 60 साल से। तो ये जो खूबसूरत चीजें हैं ये सब जगह है। सत्ताएं तो जानबूझकर फैला रही हैं चीजें, वो हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से नफरत जहर फैलाया जाता है। एक धारणा, मेरी 2 धारणाएं टूटी। पहले मैंने गुरुद्वारे वाली बात की थी और अब मैं मेवात की जो बात कर रही हूँ। मेवात में मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला। रात में भी काम किया मैंने, 15-15 दिन वहां मैं घूमती रही। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बहुत ही प्यार मिला मुझे मेवात में। यहाँ पे चैट बॉक्स में हमें और एक प्रश्न है, निर्मला जी ये जी। पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर एनकाउंटर्ड विमेन इन हरियाणा हु फेस्ड रेप harassment during partition? How do they draw upon their memory? Do they avoid it or talk about it? Are there any songs about rape trauma that these women went through? अनुवाद करूं या आप? हाँ हाँ तनवीर, मैंने सुना ये नहीं असल में। हाँ, ये दरअसल पूछना चाह रहे हैं कि आपकी रिसर्च के दौरान आप किसी महिला से मिली जिनके साथ दुष्कर्म हुआ हो और वो सर्वाइवर रही हो पार्टीशन में उसके, और क्या उसको लेकर, बलात्कार को लेकर डायरेक्टली रेफरेंसेस हैं गीतों में इन सारे दुष्कर्मों को लेकर? क्या आप हाँ, किसी ऐसे रेफरेंस सर्वाइवर भी से है। मिली? हम्म। एक गीत है मेवात का जिसमें एक ही लाइन में सुनाऊंगी कि गुपत भाड़ो भर दूंगी भाभी अब की जान बचाए, बीरोई प्यासो जाए भटंटे के टेसन पे, गुपत भाड़ो भर दूंगी बाबू अब की जान बचाए। अपने भाई को बचाने के लिए वो औरत स्टेशन मास्टर से कह रही है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मेरे भाई को जाने दो। एक और मुझे औरत मिली जिन्होंने अब तक अपना इंटरव्यू नहीं दिया है, 4 साल से मैं प्रयास कर रही हूँ। उनकी कजन से मैंने इंटरव्यू किया। वो औरत 12 साल की थी और पाकिस्तान में उनकी शादी हो रखी थी उस वक्त। उनके हस्बैंड को मार दिया गया और उनको जो है 1.25 महीने तक छुपा कर रखा गया, जमीन में एक गड्ढा खोदकर और ऊपर लकड़ी के पट्टे लगाकर उनको छुपा कर रखा गया। किसी दिन आर्मी ने उनको निकाला। अभी वो दिल्ली में रहती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे अगर बात हो जाए। एक तीसरा अनुभव मेरा रहा, अजीत सिंह जी जब गए लगभग 50 साल बाद पाकिस्तान गए, तो उनकी बहनें वहां जो है उनसे मिलने आई और उनके शोहर भी आए साथ में और कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने आपकी बहनों को उठाया और उनके साथ निकाह पढ़ लिया। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रायश्चित कर सकते हैं। ऐसे कई सारे आए। और यहाँ भी हरियाणा में भी कैसे एक व्यक्ति से मैंने जब सवाल किया, उन्होंने किसी मुस्लिम औरत को उठाया था। जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मेरा कैमरा फेंक दिया और मुझे गालियां देने लगे और वो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे भगा दिया अपने घर से। तो इस तरह की चीजें आई हैं सामने। कुछ लोग पूछ रहे हैं किताब, हाँ जल्द ही आपके सामने ये किताब आएगी लोकगीतों पर। और कोई सवाल तनवीर, सोमना? हाँ, सुनील पगल जी का एक सवाल है जो आप देख पाएंगी इसमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। उसके बाद भी है पूनम बत्रा जी का। हाँ मुझे नहीं नजर आ रहे हैं ये। ये सुनील पगल जी का आप देख पाओगी शायद। क्या इन गीतों के अलावा आपको आपके अनुभव भी हाँ हाँ, भविष्य? भविष्य में पुस्तक के रूप में हाँ देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने अब तक ऐसा नहीं सोचा है सुनील जी कि अनुभव भी दिए जाएंगे। हाँ, लोकगीतों, पार्टीशन के लोकगीतों पर जल्द ही आपके सामने किताब होगी, इसी साल में वो आ जाएगी। और दूसरी किताब भी 1-2 साल में आपके सामने आ जाएंगी जिसमें विभाजन के अनुभव लोगों ने शेयर किए हैं, कहानियां जो हैं उस किताब में। और मेरे अनुभव जो है वो मैंने अब तक ऐसा नहीं सोचा है, उस पर सोचा जा सकता है। सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं, जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं सब लोग अपने सुझाव इस काम के लिए दे सकते हैं। और कोई सवाल तनवीर? इसके बाद सवाल नहीं है इसमें। इसके बाद हाँ, और टाइम भी हो पूनम, चुका है लगभग। हाँ,
पूनम बत्रा है, लेकिन लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, अभी कोई यहाँ से जा नहीं रहा। हाँ, तो पूनम एक बत्रा तो जी ने छोटे छोटे गीत मैं जाने से पहले जरूर सुनाऊंगी, वो आप कब सुनेंगे, और आईएफए के साथ मुझे कितना मजा आया काम करके वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी लोगों से। हाँ, यहाँ पूनम बत्रा जी हैं जिन्होंने सवाल तो नहीं पूछा है, उन्होंने अजय भारद्वाज की फिल्म रबा हूँ के करिए के बारे में बताया है कि कैसे मुस्लिम्स और हिंदूज ने उस मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जी जी, मैं कैसे इसको मुस्लिम्स और पढ़ हिंदूज ने लूंगी। एक दूसरे के भाईचारे के बारे में उस फिल्म में हाँ, मैं विस्तार से इसे जरूर बताया है। देखूंगी जी। पूनम जी। और उसके बाद फिर उसके बाद जो फिर घटनाएं हुई, तो उनके बारे में भी कैसे पलटा खाया एक तरफ के भाईचारे ने और एक तरफ से दरार जो पड़ गई, उसके बारे में भी ये फिल्म में काफी जिक्र है। हाँ, असल में इस सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स हैं। हाँ, नफरत भी है कहीं छुपी हुई, प्यार मोहब्बत भी है, बहुत सारे पक्ष हैं, वो किताब में शायद क्लियर हो पाएंगे, उन पे अलग से बात हो सकती है। जी, तब तक हम फिलहाल आपके प्रपोजल के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका हमारे साथ काम करना, हमारा आपके साथ काम करना, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि निर्मल से मेरी मुलाकात, हमारी एक और ग्रांटी है अनुराधा, और एक और ग्रांटी है अशोक जो हरियाणा में है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फील्ड में जाए, खासकर जब हम बाकी भाषाओं पे, अंग्रेजी को छोड़कर जब हम भाषाओं में काम सपोर्ट करते हैं, और वो एक तरह से हमारे प्रोग्राम का मेन मुद्दा भी है कि हिंदुस्तानी भाषाएं जितनी भी हैं उसमें हम रिसर्च सपोर्ट करें। तो निर्मल से मेरी मुलाकात तब हुई थी करीब 2016-17 में, और इस प्रपोजल ने हम मिले थे शायद कुरुक्षेत्र में। इस प्रपोजल ने करीब डेवलप होने में 1.5-2 साल लगाए, क्योंकि 1.5 साल करीब करीब 1.5 साल से ऊपर, क्योंकि ये एक नया एरिया था निर्मल के लिए भी, हमारे लिए भी। इसको समझना, इसमें जो सेंसिटिविटीज थी लोगों की, जो इसमें भावनाएं थी, जो सीक्रेट्स थे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे निर्मला ने बताया भी कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव हो और कैसा प्यार मिला, तो ये सब पक्ष हमें देखने को मिले। पर निर्मला, मैं मतलब थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा कि उस समय जब हम लोग आईएफए में, जब आपने प्रपोजल भेजा और उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई, उसका अनुभव कैसा रहा आपका? और आप बिल्कुल हमें मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं क्योंकि, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि बोलिए। आपका प्रोजेक्ट मैं भी खत्म हो चुका है हमारे लोग साथ, जो तो है ना वो फिर बिल्कुल नहीं, जी, वो खत्म ना होता तब भी सिर्फ एक ही चीज मैंने लोग से सीखी है कि बेबाक बोलिए, जो आपके मन में है बोल दीजिए। हो जी, सकता है वो एक टाइम पे अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। असल में मैंने जब ये काम, मैंने बताया कि मैंने पार्टीशन पर इंटरव्यू भी किए, तो उस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, टीवी चैनल्स ने देखा और मुझसे बात करना शुरू किया, और सबने कहा कि आप हमारे साथ काम कीजिए। मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मैंने ये काम किया, तो एक प्रेशर भी था, और लोग जो है ये नजर लगाए हुए थे और कह रहे कि हमारे साथ काम कीजिए। मैं सच में, मैंने अपनी लाइफ में अब तक उतने पैसे देखे भी नहीं हैं, सोचे भी नहीं है जितना उन्होंने ऑफर रखा। 25-25, 30-30 लाख रुपए का उन्होंने ऑफर रखा, लेकिन उनकी एक शर्त थी, बहुत शर्त कमाल की थी, कि आप जो है इसमें एक असिस्टेंट रहेंगी और जो काम आएगा उस पर हमारा नाम हो। मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं पागल नहीं हूँ जो 20-20 दिन 3-3 बैग उठाए 10-10 किलोमीटर पैदल घूम रही हूँ, भूखी प्यासी मर रही हूँ, लोगों की गालियां सुन रही हूँ। मैं पैसे के लिए तो ये काम नहीं ही कर रही। मैं एक जो अंदर वो है, एक जुनून की चीजों को बचाना है, जा रही हैं चीजें। उस वक्त पे आईएफए का मिलना मेरे लिए सच में राहत भरी चीज थी। आईएफए की भी एक शर्त थी, और वो शर्त मुझे बेहद पसंद थी कि ये काम जो है, अब तनवीर मुझे घूर रहे हैं कि हमने क्या शर्त रख दी, लेकिन तनवीर शर्त थी, वो शर्त ये थी कि ये काम मौलिक होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, और मुझे सच में खुद भी इसी में मजा आता है कि मौलिक होनी चाहिए चीजें। और दूसरी जो चीज थी, हमने आज तक, क्योंकि हरियाणा से मैंने पढ़ाई की है, रिसर्च जब करते हैं तो इतने सारी उसकी शर्तें होती हैं कि आपका फॉन्ट साइज ये हो, किताब का साइज ये हो, आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है इस पे कोई बात नहीं करता, कितना लिखना है,
और कब लिखना है, इस पे बात होता है, इतने टाइम में इतना लिखना है। IFA सच में मुझे बेहद अच्छा लगा कि एक आजादी, मैंने सिर्फ इसलिए ये काम किया था लोकगीतों पर और विभाजन पर काम शुरू किया था क्योंकि मैं एक आजाद रिसर्चर बनना चाहती थी, अपनी मर्जी से काम करना चाहती थी, कोई रोक टोक ना हो, कोई पाबंदी ना हो कि ये इसमें से ये गाली निकाल दीजिए, इस धर्म के बारे में मत लिखिए, इस जाति के बारे में मत लिखिए, वो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी। और IFA जो था उसमें ये खास बात थी कि वहां कोई पाबंदी नहीं थी कि आपको जी इतने साइज में करना है। जब भी मैंने फोन किया तनवीर को, क्योंकि मेरी आदत थी, मैंने रिसर्च जब किया तो मेरे ऊपर हमेशा ये था ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब भी पूछा तनवीर ये कैसे करना है, जैसे आप चाहती हैं, एक ही सेंटेंस होता था तनवीर, अरे जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आप चाहती हैं। तो ये बहुत ही खास बात रही IFA की, और मैं बेहद खुश हूँ कि मैंने IFA के साथ काम किया। दूसरी जो चीज है, हरियाणा में एक नेगेटिव चीज भी कह सकते हैं, एक जुगाड़ वाला मामला भी रहता है। कहते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट दिलवा दो, मुझे वहां से दिलवा दो, आपका नॉन है। IFA वाकई एक ऐसी संस्था है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एरिया से हैं, किस भाषा के हैं, क्या जेंडर हैं, आपकी पढ़ाई कैसी है, कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी रिसर्च कैसी होगी, सिर्फ उसमें कुछ बात होगी तो IFA आपसे बात करेगा। और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें लोगों से ये भी सुना कि वो कागजी काम में लगे रहते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने रिसर्च भी करनी है। वो रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं, अकाउंट्स की बिल इकट्ठे करते रहते हैं। सच में तनवीर ये पक्ष भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे खामखा की चीजों में टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ा। मैं फुल टाइम अपने रिसर्च में इन्वॉल्व रही। मुझे बेहद मजा आया। IFA के लोगों से जब मैं मिली, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ये किसी संस्था के एम्प्लॉय हैं या ये मुझे कुछ सिखाएंगे, मैं करूँगी, नहीं, मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों से मिल रही हूँ। बिल्कुल परिवार की तरह उन्होंने ट्रीट किया। तो काफी थैंक यू। शानदार अनुभव रहा 2 सालों में। इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी जिन लोगों को IFA के बारे में ज्यादा जानना है, मैं तो कहूंगी कि वो किसी अलग एरिया में रिसर्च करें और IFA से जुड़ें। सच में उन्हें मजा आएगा, बेहद मजा आएगा। निर्मल, एक प्रश्न हमारे पास आया, सुनीति सिंह जी का है। उन्होंने हाँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, लिखा है कि जिन लोगों ने त्रासदी भुगती है, जिन लोगों ने उसका एक्सपीरियंस लिया है, वो आज के समय को कैसे देखते हैं? हाँ, वो आज के समय को देखते ही नहीं है सुनीति जी। वो आज के समय को सिर्फ मजबूरी में जी रहे हैं। वो हर वक्त अपने अतीत में खोए रहते हैं। पाकिस्तान में सड्डा इन्ना बड़ा घर सी, पाकिस्तान से असी एवं कर दे सी, छुआरे बड़े होने सी, लाहौर दा बाजार बड़ा फेमस सी। वो हर वक्त उन्हीं चीजों को जीते हैं। आज मुझे लगता है कि वो एक अलग ही स्थिति में जी रहे हैं इतने साल से। जिन्होंने खुद देखा है उस चीज को भुगता है, वो आज के दौर को बहुत कम देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो थोड़ी अलग समझ रखते हैं, वो ये बात जरूर कहते हैं कि फिर से तो विभाजन नहीं होने जा रहा और आज भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। तो इन हालातों को कैसे रोका जाए, इस पर उनको अफसोस है, उनको चिंता है कि हम एक बार उजड़े थे, अब तक नहीं बस पाए हैं, तो हम फिर से तो नहीं उजड़ जाएंगे। ऐसी चिंता उनमें जरूर हमें नजर आती है। हमारे पास अब प्रश्न आना बंद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्न भी पूछे, हमसे जुड़े रहे अंत तक। हम आज की शाम को यहीं पे विराम देते हुए मैं सुमना से विनती करूंगा कि वो Yeah, thank you, Tanveer. Thank you, Nirmala ji. सबका बेहद शुक्रिया मेरी तरफ से भी, सोमना जी, तनवीर जी और बाकी सब लोग जो जुड़े हुए हैं, सबने अपना वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। Yeah, it's been a really, I don't know if we can say it's been to have enjoyed this evening would mean something else, but for certain it's been a poignant evening, and something that we'll remember for a very long time. So thank you, Nirmala ji. Thanks so much. I'll request my colleague Menaka to come on screen now, and she has a couple of announcements to make. And yeah, thanks, Menaka. Yeah,
Nirmala ji, thank you so much. I join IFA and audience as well who have been very appreciative आपकी presentation के बारे में. It's, as Sumana said, it's been very reflective. और जो काम आप कर रहे हैं, the work you've been doing is so important to share these stories, and the audience has given a lot of comments. आप Facebook पे जाके भी देखिए, बहुत comments आए आपके presentation के बारे में. For all the audience, thank you so much for joining us. Every alternate Thursday, we look at sharing the work of our grantees. And our next Throwback Thursday will be on October 8th, where Ramya Ramesh, who was an archive and museum fellow, will share her experience of working with C.V. Raman's collection at the Raman Research Institute in Bangalore. So do stay tuned and come back. We'd love to see you back at our events. I'd also like to invite each of you to consider supporting the IFA fundraiser. We did a fundraiser in August with Nasruddin Shah, Ratna Pathak Shah, and Hiba Shah, where they shared 3 stories of Ismat Chugtai. We are bringing them back, this time on demand, so it's streaming live. So if you'd like to support IFA, please do pick up donor passes. All funds raised to the fundraiser will go back to supporting grants like Nirmala and the other grants at IFA. Tickets are available, donor passes are available at Book My Show. And you can watch it. It's available for viewing through the weekend of October 3rd through October 5th. So I hope we'll see some of you online there as well. Thank you everyone for joining us, and stay tuned and have a good evening.